तत् विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ नह आयो। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ नह आयो। जितने भी गुरु चरणों विच आपां बैठे हाँ, सारिਆਂ ने इन्हां बचनां दा पाठ करना है। आओ सारे रल के करिए। जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, 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 फिर संकट जोन गर्भ नह आयो। फिर संकट जोन गर्भ नह आयो। गरीब नवाज वालिए कुल आलम, नमो शाह शाहे, नमो माह माहे, शहन शाहां दे शाह पातशाह सतगुरु। सतगुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहीदी दिहाड़े के संबंध दे विच संगती जथे वल्लों ये दिहाड़ा बड़ी शरधा शिद्दत प्रेम भावना दे नाल आप जी मना रहे हो। सब तो पहला शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की इस लाशानी शहादत नूं कोट कोट प्रणाम। सतगुरु जी दे जीवन दी विचार आरंभण तो पहला साहिबां दे चरनां 'च सीस नवाओ। प्यार सत्कार अते अदब नाल दोवें हथ जोड़ इक्के वारी कहण ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु अर्जन देव महाराज जी दे जीवन ते विचार करन तो पहला मैं एक बेनती तुहाडे चरनां विच कर देनी चाहुंदा। जिन्ना कु मन नूं बिरतियां नूं टिका के बैठांगे ना, उन्ना ज़्यादा आपां गुरु दे नेड़े हुंदे जावांगे। गुरु अर्जन देव महाराज आप कृपा करदे आ, प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान इकागर चीत। ते मैं बेनती यही करनी चाहुंदा, बस इकाग्रता बख्शिओ। मैनूं पता तुसीं सारे कदरदान बैठे हो। गुरबाणी ते गुर इतिहास इनू विचारण तो पहला तन दा ते मन दा होना बड़ा जरूरी है। सुन लैना पढ़ लैना ये बड़ा सौखा जिहा है, पर माफ करना उन्होंने समझ के अपने जीवन विच ढाल लेना ये सब तो औखी घाटी है। ते आपां इस औखी घाटी नूं पार करना है। तीन गल्लां मैं गुरु अर्जन देव महाराज जी दियां तुहाडे जीवन उन्हां दे जीवन विचों तुहाडे नाल साझीआं करनियां ने। समझण दा यतन करियो। वो तीन गल्लां किहड़ियां ने? पहली गल, गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत कोई आम शहादत नहीं है।
ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਿਰਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ, ਗਰਮ ਰੇਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਪਵਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲਿਸਾਨੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਰਿੜਦੇ ਰਿੜਦੇ ਬੋਲ ਨਾਲ, ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਗੇਂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ। ਤੀਜੀ ਜੁਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲ ਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਾਤ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡੀ ਧੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਦ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲਨਾ ਸਵਾਏ ਮਾਏ ਗ੍ਰਹਿ ਕਾਜ ਲਾਗੈ ਜਾਏ। ਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਲਣੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ। ਜਿੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਧੀਏ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਖੋਲਿਆ ਨਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਖੋਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੈਸੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਗੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭਰਪੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ
ब्रह्म पछाणियो। गुरु अमरदास महाराज मंजे ते बैठे आ, प्रसादा छकदे पे आ। प्रसादा छकदियां नूं वेख के गुरु अर्जन देव महाराज रिड़ते रिड़ते मंजे दे कोल आके खलो गए ने। जदों मंजे दे आके कोल खलोते ते अपने दोतरे नूं वेख के गुरु अमरदास महाराज जी ने एक टुकड़ी, एक प्रसादे दा टुकड़ा तोड़िया, गराई कह लो तोड़ी, ते गुरु अर्जन देव महाराज नूं देनी चाही। हुण गुरु अर्जन देव महाराज ने कोतक की वरता दिता, जेड़ा हथ गुरु अमरदास महाराज जी ने गराई वाला अपने दोतरे दे अगे कीता, उस हाथ नूं पिछे कर दिता, ते जेड़ी थाली गुरु अमरदास पातशाह दे अगे पई सी उस थाली नूं अपने वल खिच लिया। गुरु अमरदास महाराज मुस्कुरा के कहंदे आ, गल सुन ओ थाली दिया वड्डिया मालका, मैं सिर्फ तेनू गराई दे सकदा, पर ये थाल मैं नहीं तेनू देना, ये तेरे बापू ने तेनू देना है। हो सकदा साडे लिए गल बड़ी छोटी जी होवे, पर इस गल दे अंदर बड़ा तत्त है। जिस थाल की गल गुरु अमरदास महाराज करते आ ना, उसे थाल की गल गुरु अर्जन देव महाराज करते आ। वो थाल दिता गुरु रामदास महाराज ने, पर गुरु अर्जन देव महाराज ने अपने तक भी सीमित नहीं रखिया, उहदे विच टिका के वस्तुआं सिक्खी दी झोली विच पा दिता। आपां एक वचन पढ़दे आ, थाल विच तिन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। ये तेने बचपन दियां बातां, कुछ कु मैं कारण शहीदी दे तुहाडे नाल सांझे करने चाहुंदा, जो गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपना आप वार के सिੱਖੀ नूं ते सिख नूं अडोलता दा राह विखाया। पहला कारण शहीदी दा, जहांगीर जिहड़ा है ना, मैं एक बेनती पहले ही तुहाडे चरनां च कर देनी चाहुंदा। कुछ गल्लां अज भी साडीआं अखां तो परोखे नहीं है, क्यों ना असी कदी सुनिया ते ना ही कदी सानू किसी ने सुनाइया। आपां सिर्फ इक्को नाम हर शहीदी ते अगे लैके आउंदे आ, सिर्फ गंगू दा, माफ करना चंदू दा। असी सिर्फ इक्को नाम ही रट लिया कि चंदू की वजह तो शहीदी हुई। चलो मानते हैं कि एक अहम नाम है शहीदी दे अंदर उहदा जुड़दा है, पर होर भी बड़े कारण ने। उन्हां कारणों विचों मैं एक दो कारण तुहाडे नाल सांझे करने चाहुंदा, फिर मैं समाप्ति वाले पासे आवांगा। पहला कारण, जहांगीर समय दा बादशाह, समय दी हुकूमत है, उहदे कोल तख्त दे उत्ते विराजमान है। ते मैं ये भी बेनती करदा, बाबर दा पुत्र होया हमायूं, हमायूं दा पुत्र होया अकबर, अकबर दा पुत्र होया जहांगीर, उस तो अगे फिर औरंगजेब तक चलदा सारा सिस्टम। हुण अकबर जिहड़ा है वो बड़ा चंगा बादशाह, उहदे अंदर दा इखलाक, उहदे अंदर कह लीए कि भी बड़ा गुरु घर दे नाल प्यार ते प्रेम गुरु अमरदास महाराज जी दे समय तो ही है। पर जेड़ा ओदा अगों पुत्र जहांगीर है वो एक नंबर दा अयासी है। कह लो कि भी ओदे नूं राज ते बिठाउणा, राज दियां जड़ां पुट्टणियां ने। हुण जदों जहांगीर तख्त ते बैठदा है ते ओदी तुझके जहांगीरी दे विच एक गल लिखी हुई है कि भी जिद्दण मैं तख्त ते बैठना है ना, सब तो पहला काम मैं की करना है। उहदे विच जिक्र करदा है, आ जिहड़ी झूठ दी दुकान गुरु अर्जन देव पातशाह खोल के बैठा है ना, आ जिहड़े भोले भाले लोग हिंदुआं तो सिख बनते जा रहे हैं, मुसलमानां तो सिख बनते जा रहे हैं, इन्हें आ जिहड़ियां रीतां चलाइयां ने ना, सब तो पहला मैं ये बंद करनियां ने। वो गल वखरी है कि लम्मा समा उन्होंने कोई चारा ना लभा, नहीं कर सकिया,
पर वो एक नंबर का घटिया बंदा कह सकते हैं जिहड़ा गुरु घर दे नाल नफरत वैर ते ईरखा रखी बैठा। दूजी बेनती, जिहड़ा चंदू है ना ओदा गुरु घर दे नाल वैर किस ढंग दा है, मैं वो भी तुहाडे नाल सांझी कर देना चाहुंदा गल। चंदू दी एक धी है ते इधर गुरु अर्जन देव पातशाह दे पुत्र गुरु हरगोबिंद पातशाह। चंदू दी धी दा रिश्ता गुरु हरगोबिंद पातशाह दे नाल कीता जाना है, पर जदों वो रिश्ता कीता जाना है, जेड़ा बंदा रिश्ता लैके आउंदा जदों वो जाके चंदू नूं ये सारियां गल्लां दसदा है ना, चंदू एक गल कहंदा है, कहन लगा तेरा दिमाग ते नहीं सी घूम गया, तू ठीक भी है। अगों वो कहंदा है कि भी ऐसा कि मैं कर आया, तू ही कहंदा सी रिश्ता करना है तो मैं कर आया, हुण तैनूं रिश्ता क्यों नहीं परवान। कहन लगा चल हुण तू रिश्ता कर ही आया ते कोई गल नहीं, पर मैं एक गल तैनूं कह दियां, चुबारे दी इट तू मोरी नूं ला आया। तैनूं इस गल दा पता है? कहन लगा मैनूं समझ नहीं लगी। कहन लगे हुण समझ, जिदा दादा घुंगणियां सिर ते टोकरी रख के वेचदा रहा, उन्हां दे पल्ले की है जिन्हां दे नाल तू मेरे धी दा रिश्ता जोड़ाया? उन्हां दे पल्ले ते कख भी नहीं। मैनू वेख, मेरी सरकारे दरबारे चलदी है, मेरी इन्नी पहुंच है, मैं जो कह दियां वो हो जाता है। वो कहते कुछ होर ने, करते कुछ होर ने, जिन्हां दे नाल तू रिश्ता जोड़ाया। जदों ये गल्लां हो रही सन, दिल्ली दे सिखां ने गुरु अर्जन देव महाराज नूं एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी दे विच वो लिखदे आ, गुरु अर्जन देव महाराज गुरु नानक पातशाह दे घर दे बारे अज चंदू ने आ शब्द वरते ने, तुसी गुरु नानक महाराज जी दी जोत दे वारस हो, तुहाडे बारे कोई कह लैंदा की पता असी जर जांदे, पर इन्हें गुरु नानक पातशाह दे घर बारे आख्या तुसी ये रिश्ता लेना नहीं है। जदों दरबार विच वो रिश्ता आउंदा है ते गुरु अर्जन देव महाराज एक गल कहंदे आ, साडे घर दे विच धी नूं बड़ा मान सत्कार दिता जांदा है। ये नहीं आपां रोज आसा की वार दे विच इस्त्री नूं बड़ा मान इज्जत दिंदे आ, सब तो उच्चा रखदे आ, पर माफ करी गल गुरु नानक पातशाह दे घर दी है, ये रिश्ता सानू परवान नहीं, ये रिश्ता मोड़िया गया। इस गल दी ईरखा चंदू दे अंदर है ते चंदू एक गल कहंदा है, मैं इस घर दे पल्ले कुछ छड्डना ही नहीं, जदों तक मैं तबाह नहीं ना कर दिंदा उदों तक मैं चैन नाल नहीं बहना। बड़ियां गल्लां ने कहण दे लई, ते मैं एक बेनती ये भी करां, साडी रात मुकदी है, साडी बात नहीं मुकदी। ये ध्यान नाल सुनियो, गुरु नानक महाराज दे घर दे विच रातां ते मुक्कणगियां, पर गुरु नानक पातशाह दे घर दीयां बातां कदी नहीं मुक्कणगियां। जिन्नियां मर्जी तुसी करी जाओ, मैं करी जावांगा, तुसी सुनी जाणियां, पर मैं अखीर इत्थे आउणा चाहुंदा तीजे नंबर ते सिर्फ संखेप रूप दे विच इन्हां नावां नूं चेते रखियो। एक शेख अहमद बुखारी, जदों तुसी फतेहगढ़ साहब की धरती ते जांदे हो, साहिबजादियां दी जिथे शहादत हुई है उहदे नाल ही बिल्कुल उहदा मकबरा बनिया होया है। ते मैं बड़ा हैरान हुन्ना अज दे सिखां ते, मैं कहना कि भी आपां सिक्खी नूं कित्थों कित्थे लिया के खड़ा कर दिता। चलो उस धरती ते लम्मा समा मैनूं भी रहण दा मौका मिलिया सी, प्रचार करते रहे हैं। उत्थों दे सिख ही एक गल ये कहिंदे आ कि भी जदों तक तुसी इस मकबरे विच मत्था नहीं ना टेकदे, उदों तक शहादतां दी थां ते मत्था टेकिया परवान नहीं। मैं बड़ा हैरान हुन्ना, जेड़ा तुहाडे गुरु नूं तत्तियां तवियां ते बिठा दे ते तुसी ये गल आखो कि इहदे ते मत्था टेके बिना तुहाडा ये जिहड़ा मत्था परवान नहीं होना, आपां किहड़े पासे तुरे आ। ये उन्हां दे विचों है जिहड़े शेख फतेह नगाहे वाले ने,
जिन्हां नूं लोकी अज भी भोले भाले सिख लैके दुध दियां बना के खीरां ते उहनूं चढ़ाउंदे फिरदे आ। ਇਹ ਉਹੀ शेख फतेह दे नाल जाणिया जांदा है। हुण ਇਹਦੇ मन दे विच भी बड़ी वड्डी ईरखा है। एक शाही दरबार जहांगीर दे दरबार दे अंदर बड़े वड्डे अहुदे ते बैठा होया शेख बुखारी दे नां तो, जिन्हों आपां इस नाम तो भी जानते हैं मुर्तजा खान। हुण जेड़ा शेख अहमद बुखारी है ना, ओदी ते मुर्तजा खान दी आपस चिट्ठियां विच बड़ी गलबात हुंदी रहिंदी सी किसे ना किसे तरीके दे नाल। तू गुरु अर्जन दे पातशाह नूं खत्म करा दे, क्योंकि मेरे राह दा रोड़ा ही यह है। हुण ओह भी बहाना लभदे फिरदे सन। इधर जहांगीर दे घर एक बगावत खड़ी हो गई। वो सारा कारण जिहड़ा शहीदी दा बनना है वो इत्थों शुरू होना है। वो बगावत की खड़ी हुई, दो खुसरो हुए ने इतिहास दे अंदर। एक होया अमीर खुसरो, ये बहुत लंबा समा पहला होया, पर यह जिहड़ा खुसरो है ये चेते रखना जहांगीर दा अगों पुत्र है। इन्हें अपने पिता के खिलाफ जिहड़ी है वो बगावत खड़ी की, ते उस बगावत नूं खड़ी जदों इन्हें कीता, ये थनेसर तो हुंदा होया, चेते रखना कई कहते ने गोइंदवाल साहब की धरती ते पहुंचया। उस वेले गुरु अर्जन देव महाराज अमृतसर साहब की धरती ते ने। गुरु अर्जन देव महाराज तो है ही नहीं, गोइंदवाल साहब की धरती ते जेड़े इल्जाम लाए गए ने, चलो बाद चों जहांगीर ने इनू पकड़ लिया। 20 दिनां दे अंदर जिन्ने भी पकड़े गए ना, सब नूं उन्हें सजावां दे के खत्म कर दिता। ते कहंदे खुसरो नूं उन्हें बड़े ढंग दे नाल, कई इस तरह कहंदे आ, ओदियां अखां दे विच जहर पा दिता, तड़फ तड़फ के वो मरिया। ते कई इस तरह कहंदे आ कि भी ओदियां अखां दे विच मिर्चां पा के ते ओदियां अखां नूं सी दिता। इस तरह उन्होंने मारिया। तो हुण तुसीं इत्थों अंदाजा लावो, जेड़ा अपने पुत्र दा सक्का नहीं तो गुरु अर्जन देव महाराज दा सक्का किवें होएगा। इस तरह 20 दिन इन्हें अपने वो पकड़े हुए सारियां नूं खत्म कर दिता। 20 दिन इस तरह लंघे। मुर्तजा खान ने एक गल सोची, यही समय गुरु अर्जन देव पातशाह नूं शहीद कराउण दा, क्यों ना मैं जाके दरबार दे विच इह गल कह दियां। एक नाम ते जहांगीर तू छड्ड ही गया जिन्हें अहम रोल निभाया। इन्हें जाके आख्या, चिट्ठी लिखी इन्हें, जहांगीर तू गुरु अर्जन देव पातशाह नूं भुल गया, क्योंकि तेरे पुत्र नूं टिक्का देण वाला, प्रशादा छकाउण वाला, पानी पियाउण वाला, अपने घर पनाह देण वाला ते गुरु अर्जन है। हुण जहांगीर एक ऑर्डर पास करदा है, फतवा पास करदा है कि भी इहदे पूरे परिवार नूं बंदी बना लिया जावे। फिर मेरी बेनती ध्यान नाल सुणिओ, इन्हें ये गल आखी, जिथे तुसीं गुरु अर्जन देव महाराज नूं पकड़ना है ना, उत्थे नाल इन्हां दा परिवार ते जिन्नी भी इन्हां दी जायदाद है वो सारी जब्त कर लैनी है। मुर्तजा खां अपने कुछ कु बंदे लैके गुरु अर्जन देव महाराज नूं पकड़ के लाहौर की धरती ते लै गया। उन्हां दे नाल कुछ कु सिख भी ने, भाई लंगाहा जी, भाई बिधि चंद जी, भाई पैड़ा जी, अनेकां इहो जे 5 सिखां दा जिक्र आउंदा है। हुण गुरु अर्जन देव महाराज नूं पकड़ के लाहौर की धरती ते लिजाया गया। 2 दिन इतिहास कहंदा है उन्हां नूं भुखे रखिया गया, ना खाण दे लई, ना पीण दे लई, ना चंगा सौण दे लई, इहो जे तसीखे दिते गए ने। हुण जदों 3जा दिन चढ़िया ना, गुरु अर्जन देव महाराज नूं लिया के अग थले बाल के देग विच पानी पा के उन्होंने उबालिया गया, जिस तरह इतिहास विच लिखिया। गुरु अर्जन देव महाराज नूं उबलदी देग विच बिठाया गया। देग कह लो कि एक वड्डा सारा भांडा जिहदे विच कोई चीज बनाई जाती है, उस उबलदी देग विच उबालिया गया। ते इतिहास कहता है जिमें जिमें अग होर लाटां फड़दी जाती है, गुरु अर्जन देव महाराज जी दे तन दा जिहड़ा मास है ना,
ਉਹ ਮਾਸ ਸਾਰਾ ਢਿਲਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਸਾਡੀ ਉਂਗਲ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ ਜੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ। ਇਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣੀ। ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਧੂ ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਰੋ ਪਿਆ ਉਹ। ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਈ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋ ਪਈਆਂ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹੇ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਤਨ ਮਨ ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਭ ਅਰਪੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਆਪ ਜਲਾਈ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਵੇਖ ਕੱਲ ਮੈਂ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਵੇਖ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਜ ਤੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਡੋਲਤਾ ਦੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅਡੋਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਡੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ
नानक देकर हथ ते मैनू माफ करना। क्यों आपां द्वार द्वार ते भटकदे फिरदे आ, क्यों आपां जने खणे दे जाके पैरां च मत्थे रगड़दे फिरदे आ, आपां एक गुरु अर्जन दे पातशाह ते क्यों नहीं भरोसा करदे। पढ़दे आपां रोज़ां तत् विचार यह मथुरा जगतारन को अवतार बनायो, जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ ना आयो। इन्हें तुहाडे सारे संकट दूर कर देने आ, उन्हें अपने तन ते संकट पवा के सिखा तेरे संकट दूर कर दिते। तेरे लिए उन्हें अपना आप वारिया। इस शहादत तो आपां कुछ ना कुछ सीखिए। कला सुन लेना मेरे मैं सुना देना, जदों तक इनू अपने जीवन विच आपां ढालदे नहीं ना, मैं बेनती करां उदों तक शहादतां मनाइयां किसी काम दियां नहीं। शहादतां उदों ही मनाइयां जाणियां ने जदों असीं उस राह नूं इख्तियार कर लिया। गुरमत दा राह जिहड़ा ना वो चेते रखना निर्मल पाक ते पवित्र राह है। आपां उहनूं पाक ते पवित्र रहन दईए, उहदे विच चेते रखना दाग ना आउण दईए। अज जिन्ना को आपां इस राह नूं रोड़े साफ करने सन, उन्ने को रोड़े आपां इस राह विच खलार बैठे आ, जिहड़े साडे तो चुगे नहीं जा रहे। इतिहास अपनी जगह है, गुरबाणी अपनी जगह है। जदों दोवां दा समेल हुंदा है ना, चेते रखना उदों साडा जीवन बनदा है। गुरबाणी भी पढ़ो, इतिहास भी सुनो। सतगुरु तुहानू इसे तरह शहादतां दे दिहाड़े मनाउण दे बल उद्यम बख्शण। बीबियां दे संगती जथे दा बहुत बहुत धन्नवाद, जिन्हां ने ये उपराला करके तुहानू इस राह वाले पासे जोड़िया। ते मैं अग्गों भी ये अरदास गुरु चरनां विच करदा, इसे तरह इन्हां दी गुरु दे नाल निभ जाए ते अपनी गुरु दे नाल निभा लैण। सतगुरु दाता सब नू तुहानू चढ़दी कला बख्शे। फिर दोबारा तो कोटान कोट प्रणाम। धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की शहादत नूं सतगुरु कृपा करे। बोलदियां पासों अनेकां भुलां गलतियां आप जी ने बख्श लैणियां जी। इन्ना को समा प्रवान करियो जी। वाहिगुरू जी का